Physics. Good afternoon, everyone. I hope I'm audible to you. Yes, sir. As the expert has also joined us, I think we should start. Actually, the government of India has taken the initiative on 8th of December 2021 to provide the awareness on intellectual property and its rights to 1 million students across India. It aims to inculcate the spirit of creativity and innovation to students of higher education and to ignite and inspire the students of colleges and universities to innovate and protect their creations and ideas. The initiative has been named as NIPAM, National Intellectual Property Awareness Mission. The mission to emphasize the role of a strong IPR ecosystem in the advancement of a country and how IPR is an important tool for intellectual property holder to become a job giver rather than job seeker. As under this mission, Government College of Engineering and Technology and Indian Institution of Engineers India, J&K State Center has jointly conducted the awareness program in association with Ministry of Commerce and Industry, Intellectual Property, India Department of Promotion of Industry and Internal Trade. Before starting the session, let me briefly introduce you to the expert for the session. He is Mr. M. Atikullah. Mohammad Atikullah is presently working as Assistant Controller of Patents and Design at Indian Patent Office at New Delhi. He is MTech in Molecular Engineering from IIT Delhi. He has qualified many competitive exams like NET, JRF, GATE, and so on. He has also a one-year patent quality program in his credit. Mr. Atikullah is also a member of the quality cell at Indian Patent Office, New Delhi. So let us listen to the expert carefully. I'm sure that many of us will be unaware of this topic. Now, I request the expert to please start the session. Atikullah sir, please go ahead. Thank you, sir. Thank you very much. Are you able to see my slide? No, sir, it's not in on the screen. Okay. I'm not able to share the slide. Now it is okay. No, sir, I think, yeah, it is presenting. Just a second, sir. Yes, sir, this is a presentation is now visible.
Your screen is now visible, sir. Visible? Okay. This is, sir, this is the first slide, and let us see. Sir, can you change the slide for a moment? Okay. Now I think this is second slide. No, sir, this is first one. This is This is again, sir, first one. from my side. It is sharing actually second, third, fourth, but I don't know why it is happening. So what should I do? Sir, okay, sir, you can continue. No issue, sir. Shall I share again? So you can try once again. You stop and start the share again. Let us see. Okay. But if presentation is not visible, then it's fine. Your presentation is still okay without presenting. Let me once try. If it is sharing, then it is okay for all. Okay, sir. Should I send my presentation to your mail and you will handle from there? If it is from my side, it is a problem. Sir, yes, sir. Should I send my presentation to you? Yes, sir. Yes, sir. You can send. Okay, let me try once. Can you send me your mail ID, sir, please? On my WhatsApp? Okay, sir. You can forward me on my WhatsApp as well. Still, I'll send you my email ID, sir. Please send. I have sent you. Please once check and then reply me, please. Okay, sir. I will check. And you, please, sir, you Continue. Okay. जैसा कि सर ने आपको बतलाया इंट्रोडक्शंस में, हम आज यहाँ क्यों हैं, इसका मकसद ये है कि हम आपको बता सकें कि आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 दिसंबर को एक प्रोग्राम लेकर आई है जिसका नाम निपैम है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसके तहत हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि रियल आईपीआर के फादर है, जनक है, उनके पास हम जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों, क्या नीड है इसकी, एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ मिसाल के तौर पे हम पेश करते हैं आपको, आप इसको ध्यान सुनिए। डिफरेंट आईपीआर में से एक आईपीआर है पेटेंट। पेटेंट का नाम आपने सुना होगा। इंडिया में 60,000 एप्लीकेशंस इस साल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ है। उस 60,000 एप्लीकेशंस के अंदर सिर्फ 42% के अप्रोक्सीमेटली फाइल हमारी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं
और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस इज फाइल्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। उन 43% के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, ओनली 10% फाइलिंग आर देयर, बिलो 10%। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, वो टैलेंटेड नहीं है। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वी हैव ए टैलेंट, बट टैलेंट हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको आईपीआर के रूप में प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मिशन लेके आई है, जिसके तहत हम लोग आपके पास पहुंच रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज आईपीआर, व्हाट इज प्रोटेक्शन और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ, जब भी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आईपीआर एक प्रॉपर्टी ही है। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी कितनी तरह के होते हैं? प्रॉपर्टी 2 तरह के होते हैं। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर्टी? एनीथिंग्स विच यू ओन, जिसका आपको लीगल राइट है और जिसका आप मालिक हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल उसको कहते हैं जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके। आप अपनी आंखों से टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपका कार है, आपका लैंड है, आपका मकान है, आपका घर है, वो सब टेंजेबल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। इनटेंजेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए आज यहाँ मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इनटेंजेबल प्रॉपर्टी, जो इंसान के दिमाग की उपज है, तशव्वुर करके हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनटेंजेबल प्रॉपर्टी। तो जो इनटेंजेबल प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे एराइज होता है, कहां से आता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे माइंड से, हमारे दिमाग की उपज, जैसा मैंने आपको बतलाया, और इससे जो क्रिएशन होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कोई आदमी कोई इन्वेंशन करता है, जैसे कोई आदमी कोई आर्टिस्टिक वर्क करता है, कोई आदमी किताब लिखता है, कोई आदमी कोई लिरिक्स लिखता है, कोई ड्रामेबाजी करता है, इस तरह की कोई चीजें जो है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंसान के दिमाग की उपज है और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नाउ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एराइज कैसे होंगे? जाहिर है कि जब कोई काम आप करते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं। कहां सोचते हैं? दिमाग से सोचते हैं। उसमें आप कुछ रिसोर्सेस लगाते हैं और मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो दिमाग की जरूरत है, रिसोर्सेस होना चाहिए, और ऑफ कोर्स इसमें लेबर की जरूरत है। हम लेबर करेंगे तब ये प्रॉपर्टी हमको मिलेगी। नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये इट मे बी ऑफ ए डिफरेंट काइंड्स, लेकिन ये जो 5 और 6 थिंग्स यहाँ पे स्लाइड के आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, सॉरी, कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, वो 5 चीजों में हो सकती है। जो इंसान के दिमाग की उपज है, उसको 5 थिंग्स के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला पेटेंट, दूसरा डिजाइन, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा कॉपीराइट, एंड 5वां ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड सेमीकंडक्टर इंडिकेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। आई रिपीट अगेंस्ट, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यानी इंसान जो चीजें सोचता है अपने दिमाग से, उनको इन 5 और 6 थिंग्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है, और दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आपको डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल सकती है। जैसे आप एप्पल का लैपटॉप देखें, तो एप्पल के लैपटॉप पे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जो है एप्पल का फोटो बना होता है, वो उसका ट्रेडमार्क है। उसकी जो एलईडी स्क्रीन है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, उसका हम पेटेंट ले सकते हैं। एप्पल का जो बॉडी है, वो स्पेसिफिक शेप में होता है, उसका डिजाइन है, डिजाइन ले सकते हैं, उसमें डिजाइन आईपीआर है। जब कोई चीज आप लिखते हैं या कोई चीज मशीन बनाते हैं, तो उसके लिए आप व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव अ यूजर मैनुअल, क्योंकि बिना उसके आप कोई चीज कैसे कोई दूसरे आदमी को सोल्ड करेंगे, तो वो आदमी कैसे उसको इस्तेमाल करेगा, उसको बताने के लिए आप एक मैनुअल तैयार करते हैं, गाइडलाइन तैयार करते हैं, वो उसके कॉपीराइट के अंदर आएगा। और उस एप्पल के अंदर जो सर्किट है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन के अंदर आएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक एप्पल की लैपटॉप के अंदर या एप्पल के स्मार्टफोन जो होते हैं, उनके अंदर आप कितनी तरह की आईपी इन्वॉल्व हो सकती है।
सिंपल मैं एक दूसरी एग्जांपल ले लूं, पेन, आपने रिनॉल्ड्स का पेन देखा होगा और भी कोई आपने डिफरेंट रोटोमैक्स वगैरह के पेन देखे होंगे। रिनॉल्ड्स के पेन के ऊपर उसमें बॉल पॉइंट लगा होता है, वो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो उसकी टेक्नोलॉजी है, तो उसका पेटेंट मिल सकता है। और रिनॉल्ड्स लिखा होता है एक, उसके ऊपर में एक स्पेसिफिक लेटर में लिखा होता है, वो उसका ट्रेडमार्क है। उस पेन का डिजाइन आप देखिए, वो उसकी डिजाइन आईपीआर के अंदर आएगा। तो डिफरेंट आईपीआर एक भी सामान के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट आईपीआर हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई आईपीआर है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो अगर आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसका प्रोटेक्शन, उसका राइट लेना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि सपोज कीजिए आपके टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया, कोई आपको पोम लिखने के लिए कहा या कोई मशीन डिजाइन करने के लिए दिया और आपने उसको डिजाइन भी करा, लेकिन आपसे पहले आपका रूममेट जाकर के टीचर को क्लास नोट्स बना करके या असाइनमेंट बना करके टीचर को सबमिट कर दिया। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए कि वह इतना अच्छा वर्क था कि टीचर को पसंद आया और टीचर ने क्या किया कि उसके लिए उसको प्रेज किया, तो डेफिनेटली यू पीपल विल फील सैड, आपको उदास लगेगा। यहाँ पे ये प्रोफेसर देखिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? क्योंकि इनका आपको कोई प्रोफेसर है, उन्होंने एक नोबेल वर्क किया, उनका काम एक रिसर्च आर्टिकल्स में पेपर पब्लिश करना था, लेकिन सपोज कीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि उनका वर्क किसी और ने कॉपी कर लिया और इनके पब्लिश करने से पहले वो पब्लिश कर लिया। तो आप तस्वीर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इंसान उस वक्त किस तरह की हालात से गुजर रहा होगा, उसको कितनी तकलीफ होगी, उसको कितनी तकलीफ महसूस हो रही होगी कि मेरा काम है और मेरे वर्क के लिए किसी और को प्रशंसा मिल रही है, किसी और की हौसला अफजाई हो रही है, मैंने इसको किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए प्रोटेक्शन जो है बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई आईपीआर है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। नाउ द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, मैं इस बात में ये बताना चाहता हूं कि क्यों अगर आपके पास आईपीआर है तो अगर उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि अगर जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, आप उस मकान में खुद रह सकते हैं, उसको किराए पे लगा सकते हैं, उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये भी एक प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इसका प्रोटेक्शन लेंगे, इसकी राइट आप अपने पास लेंगे, तो क्या होगा, इसका अगर राइट लेते हैं आप तो इस राइट को खुद ही यूज कर सकते हैं। यू कैन योरसेल्फ कमर्शियलाइज कर सकते हैं, यू कैन योरसेल्फ यूज कर सकते हैं, खुद ही यूज कर सकते हैं, या आप इसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं या किसी को आप इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है, आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और उसकी कोई राइट है, तो ये काम कर सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं, चूंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी को दूसरे को कॉपी करने से रोक सकते हैं। आपके पास कोई इन्वेंशन है, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, तो दूसरे को इस्तेमाल करने से आप रोक सकते हैं। नाउ आप उसको दूसरे को क्या करेंगे, इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं और आप बिजनेस करके उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। नाउ एक कॉमन इंसान के लिए जो बहुत बड़ा इन्वेंशन नहीं कर पाए लेकिन छोटे मोटे इन्वेंशन उसके पास है, तो वो भी क्या कर सकता है। अगर आपके पास इन्वेंशन है, आप उसका पेटेंट करा सकते हैं, उससे क्या हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कॉमन पर्सन के लिए। जैसे मैं कहूं कि आपने 3 इडियट मूवी देखी, उस मूवी के अंदर आपने देखा हो कि आमिर खान को लास्ट में जब उनके दोस्त ढूंढते हैं तो बोलते हैं दिस इज द पर्सन, उसके पास 300 पेटेंट्स है। जब आपके पास अगर कोई पेटेंट है या आपके पास आप बोलते हैं मैं 14 ऑथर्स का 14 बुक्स का मैं ऑथर्स हूं, अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो आप अपने आप को एक बहुत ही वेटेड पर्सन महसूस करते हैं। जिस तरह से किसी इंसान के पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तो वो अपने आप को फील करता है कि मैं अमीर आदमी हूं। तो इसी तरीके से अगर आप साइंटिस्टों के पास, आप स्टूडेंट्स के पास अगर कोई आपके पास आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप अपने आप को फख्र महसूस करेंगे। सो देयरफॉर ये मैटर ऑफ प्राइड्स है। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर भी इसका बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई पेटेंट मिल गया तो उससे आप प्रमोशंस में, उसको फ्यूचर ग्रोथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंस है। बिजनेस पर्पस से क्या सोच सकते हैं, इसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं, इसकी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, इससे आप अर्न एंड इन्वेस्टमेंट करके उससे अर्न मनी कर सकते हैं। नाउ अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में सारे आईपीआर के बारे में जल्दी से बता देता हूं। पहली बात यह है कि व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वर्ड तो वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं जिनको पेटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अरे फला आदमी का वो फला आदमी बहुत पेटेंट आदमी है।
वो मतलब जब ये कह रहे होते हैं तो क्या कह रहे होते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि उसका वो राइट है, वो उसका विश्वसनीय पर्सन है, उसी की बात मानेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, वो उसका पेटेंट आदमी है। मतलब वो एक तरीके से मोनोपोली राइट को बताना चाहता है। तो ये जो पेटेंट है किस लिए मिलता है, पेटेंट इन्वेंशन के लिए मिलता है। प्लीज कीप इन द माइंड डियर स्टूडेंट्स, पेटेंट इन्वेंशंस के लिए मिलता है। जब कोई काम आप नोवेल करते हैं, कोई नई चीज खोज करते हैं, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलता है। पेटेंट कौन देता है, पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। किसको देती है, तो जिसने इन्वेंशन किया उसको देती है। ये एक्सक्लूसिव राइट देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कितने ईयर्स के लिए देती है, ये 20 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक्सक्लूसिव राइट देती है। आप इसका क्या कर सकते हैं, तो जिस तरीके से आप एक मकान बनाते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, पेटेंट अगर आपको मिलता है तो वो आपका आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से आप उसको खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद उसको आप इस्तेमाल करके आप उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके उसको आप अपना प्राइड बढ़ा सकते हैं, उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं, उससे अर्न मनी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक्सक्लूसिव राइट है ग्रांटेड बाय द पेटेंट, पेटेंट इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जिस इंसान को पेटेंट मिलता है, जिसका इन्वेंशन है उसको पेटेंट मिलता है, उस इंसान को पेटेंटी कहते हैं। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि 20 इयर्स का मोनोपोली राइट है। 20 इयर्स के बाद ये टेक्नोलॉजी आपके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चली जाती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी आम जनता की प्रॉपर्टी है, उसको कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। ये एक कॉमर्शियल राइट है, ये आप इसको कॉमर्शलाइज कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं। नाउ किस लिए मिलता है, तो आप अपना जो इन्वेंशन किए हैं, जो फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन है, वो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बतलाते हैं, बदले में गवर्नमेंट जो है आपको इसका एक्सक्लूसिव राइट देती है। ये टेरिटोरियल है। टेरिटोरियल कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर मान लीजिए आपने इंडिया में पेटेंट लिया है तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर इंडिया। इफ यू आर गोइंग टू अब्रॉड लाइक यूएस and you are saying, look, I have a patent in India, please don't copy and don't abusing my inventions, तो वहां पे ऐसी बात नहीं होगी। और आपको जो है अगर यूएस में भी आपको मार्केटिंग करनी है, वहां पे अपने इन्वेंशन को बेचना है, तो आपको यूएस में भी पेटेंट लेना पड़ेगा। टेरिटोरियल राइट है, टेरिटोरियल राइट है, जिस कंट्री में लेंगे उसी कंट्री में वैलिड है, दूसरे कंट्री में वैलिड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया पेटेंट किस चीज के लिए मिलता है, तो इन्वेंशन के लिए मिलता है। नाउ इन्वेंशन क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट बात है। इन्वेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेटेंट एक्ट है, और पेटेंट एक्ट के अंदर 1970 पेटेंट एक्ट, उस एक्ट के अंदर इन्वेंशन को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज इन्वेंशन, तो इन्वेंशन किसे कहते हैं, तो कोई भी चीज, आपने कोई मॉलिक्यूल बनाया, आपने कोई एपरेटस बनाई, आपने कोई डिवाइस बनाई, कुछ भी बनाया, वो अगर एक नोवेल है तो उसको पेटेंट मिलेगा। तो पेटेंट होने के लिए इन्वेंशन किसको मानती है, अगर कोई एपरेटस आपका न्यू है या आपका कोई मॉलिक्यूल न्यू है तो नोवेल होना चाहिए। पहली बात तो न्यू या नोवेल होना चाहिए। दूसरी बात इन्वेंटिव स्टेप उसमें देखा जाता है कि कहने का मतलब कि जो टेक्नोलॉजी प्रायर में पहले थी, उस टेक्नोलॉजी से आपने ऐसा क्या किया, क्या टेक्निकल एडवांसमेंट लाई उसके अंदर। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर 4 स्टेप का रिएक्शन है, 4 स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, अगर आपने उसमें कुछ ऐसा किया कि 1 स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया, तो इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट ये हुआ कि आपने टाइम कम कर दी, आपने कॉस्ट कम कर दी ड्रग की। कोई मशीन पहले से ऑपरेट कर रही थी और उस मशीन में आपने उसकी कुछ ऐसी मशीन के अंदर डिजाइन किया कि इफिकेसी उसकी बढ़ गई, उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये इन्वेंशन है और उसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा। ऑफ कोर्स आप जो भी इन्वेंशन करते हैं उसका ह्यूमन काइंड पे क्या फर्क पड़ता है, उसका क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, वो होना चाहिए। तो अगर 3 चीजें हैं, अगर आपका प्रोडक्ट नोवेल है, या आपका उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है, या आप उसको इंडस्ट्री में उसको बनाने और बेचने के लायक है, तो उसके लिए आप पेटेंट अप्लाई कर सकते हैं और आपको पेटेंट मिलेगा। नाउ सम थिंग्स यू शुड मस्ट नो, डू नॉट पब्लिश योर एप्लीकेशन। जनरली प्रोफेसर्स क्या करते हैं, उनको पेपर पब्लिश करना होता है एकेडमिक पर्पस के लिए। तो अगर मान लीजिए इवन तो आपके पास कोई अच्छा इन्वेंशन है, जो मैंने इन्वेंशन की कैरेक्टरिस्टिक बताई उनमें से आप देख रहे हैं कि उनके पास अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन फिर भी वो अगर पेपर पहले पब्लिश कर देते हैं
और बाद में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ये गलत है। क्योंकि एक बार आपने पेपर पब्लिश कर दी, वो पब्लिक डोमेन में आ गया, लोगों का चीज हो गया, और उसके लिए आपको इवन दो इट इज इन्वेंशन, वो नई चीज है, लेकिन आपको पेटेंट यानी मोनोपोली राइट नहीं मिलेगी। तो आई एडवाइस यू कि सबसे पहले आप क्या करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको बाद पब्लिश करें। एक बार पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से आपके पब्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पब्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। तो डू नॉट वेट अंटिल, नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, डू नॉट वेट अंटिल द इन्वेंशन इज फुली डेवलप। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज आप एक मशीन बना रहे हैं, कोई आप मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो 90% आपका रिसर्च वर्क और 90% आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है, 10% जो है बचा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपको लगता है कि विद इन 1 ईयर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, हम अपने असाइनमेंट को फिनिश कर लेंगे, हमारा इन्वेंशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप जल्दी से आकर के पेटेंट फाइल कर लीजिए। इवन दो योर वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, एटलीस्ट 1 ईयर के अंदर आपको लगता है कि कंप्लीट कर लेंगे, तो आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं पेटेंट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जो पहले आके इन्वेंशन डिस्क्लोज कर देगा उसी का माना जाएगा। अगर 2 लैब साथ साथ काम कर रही है, अगर मान लीजिए आपने दोनों आदमी सेम रिएक्शन कर रही है, सेम मशीन पे आप काम कर रहे हैं, सेम एपरेटस डिजाइन कर रहे हैं, तो जो पहले आकर के गवर्नमेंट के घर में एप्लीकेशन दाखिल कर देगा उसका माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप वेट न करें कंप्लीट इन्वेंशन कंप्लीट होने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इतना लिबर्टी देती है कि 1 साल के अंदर आपको लगता है कि हम फाइल कर पाएंगे, तो आप जो है जल्दी से आकर के पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल कर दीजिए। डू नॉट शेयर योर इन्वेंशन विद अदर्स। कहने का मतलब है कि थर्ड पॉइंट ये है कि डू नॉट शेयर योर इन्वेंशन विद अदर्स। अपनी इन्वेंशन को, अगर आपके माइंड में, आपके जहन में किसी भी तरह का आईपी है, तो उसको किसी से शेयर ना करें प्लीज। कोई ना कोई आपको क्या करेगा, स्लाइड शो हो रही है सर? क्या मैं स्लाइड, यस सर शो हो रही है, आप देख लीजिए, चेक कीजिए। 1 मिनट सर, आ रही है सर स्क्रीन पे कि नहीं? मैं 1 मिनट देखता हूँ सर। अब आ रही है सर। आप ना स्लाइड आप और स्क्रीन आगे बढ़ाइए सर। नेक्स्ट, मूव नेक्स्ट, मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बैक हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, या नेक्स्ट नेक्स्ट, इससे एक पीछे, एक बैक 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 प्लीज, एक बैक और राइट राइट। सो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, डू नॉट शेयर योर इन्वेंशंस विद अदर्स। 20 years यू विल गेट अ राइट। आपको 20 years तक का इसमें राइट मिलेगा, लेकिन ये राइट जो है थोड़ी सी मेंटेनेंस फीस गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। इवन दो यू हैव पेटेंट, यू हैव टू गिव सम मेंटेनेंस फीस सो दैट कि आपका पेटेंट को आपके पेटेंट को लाइव किया जा सके। पेटेंट जो राइट है वो टेरिटोरियल राइट है, आपको मैंने ये बात पहले बता दी। प्लीज मूव नेक्स्ट सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई इन्वेंशन है, तो एक इन्वेंशन पूरी इंसानियत को बदल सकता है। पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आप सब जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया था और इसके लिए इनको यूएस में पेटेंट मिला था। तो इसी तरीके का अगर आपके पास भी कोई रिसर्च वर्क है, कोई आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी आपका इनोवेटिव हो, न्यू हो, और उसके लिए आपको पेटेंट रजिस्टर करना चाहिए। प्लीज गो हेड सर। These are the some famous inventions in India. नैनो कार, आप हेपेटाइटिस सी की ड्रग है, और जयपुर का फुट है। ये आप देख सकते हैं, these are the some famous invention in India which is important for the human kinds also. and इसको, इस इन्वेंशन से इन लोगों ने अर्न किया बिलियंस रुपीस, मिलियंस रुपीस अर्न करते हैं। तो इसी तरह से ऐसा नहीं कि हमारे कंट्री में इन्वेंशन नहीं है, हमारे कंट्री में भी इन्वेंशन है, हम लोग भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है इसको राइट को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए और राइट को हमें लेना है। प्लीज गो एट सर। इस केस में आप देख रहे हैं क्या, ये छोटे से बच्ची है। हर घर में अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आंखों में जब बच्चे को बात कराया जाता है तो दे आर क्राइंग बिकॉज सोप वाटर इज गोइंग टू बी इंटर इन हिज हर आईज। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए छोटा सा इन्वेंशन है, किसी ने कैप बना दी इस तरह की, बच्चों को नहला भी सकते हैं और उससे जो है उसके आंख में सोप वाटर नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी R&D करनी है, बड़े आपको लैब में काम करनी है। छोटे लैब में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको इस तरह का चीज, इवन किचन के अंदर, घर में जो खाना बनता है वहां भी इन्वेंशन हो सकता है।
सो कहने का मतलब यह है कि छोटी छोटी बातें भी इन्वेंशन हो सकती है, बट उसको पहचानना है कि ये इन्वेंशन है, राइट। गो हेड सर। अब अगर आपके पास कोई इस तरह का इन्वेंशन है तो आप क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर आपका दिल्ली पेटेंट ऑफिस के अंदर आता है, तो अगर आपके पास कोई इन्वेंशन है सो प्लीज यू मे फाइल योर इन्वेंशंस और योर एप्लीकेशंस इन द दिल्ली पेटेंट ऑफिस। दिल्ली पेटेंट ऑफिस के अंदर आप एप्लीकेशन दाखिल करके आप पेटेंट ले सकते हैं। प्लीज गो एट सर। नाउ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है वो ये क्या होता है, ट्रेडमार्क से हम ये देखते हैं कि अगर दो चीज किसी, जैसे एडिडास का जूता और नाइक का जूता है, तो नाइक के शूज के ऊपर और एडिडास के शूज के ऊपर अगर मार्क हटा दिया जाए तो पहचान में नहीं आए क्योंकि किसका है। एक नॉर्मल फोन है और एप्पल फोन है, अगर उसके अंदर से आप उसका लोगो हटा देंगे तो पता नहीं चले किस ब्रांड का है। तो इसीलिए ट्रेडमार्क जो होता है वह किसी साइन के शक्ल में, किसी वर्ड के शक्ल में, किसी स्लोगन की शक्ल में ये होता है और इससे किसी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये भी एक अनदर काइंड्स ऑफ आईपी है। तो अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी है तो उसको आप आईपी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। जैसा मैंने ये बता दिया कि ट्रेडमार्क किन किन चीजों में हो सकता है, वर्ड हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लेटर हो सकता है, न्यूमर हो सकता है, शेप हो सकता है, स्लोगन हो सकता है। इस स्लाइड के ऊपर जितनी बातें लिखी गई है इन फॉर्म में ट्रेडमार्क आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। दीज आर द सम पिक्चर्स जहां पे आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो है, मैकडोनाल्ड्स का लोगो है, ये स्लोगन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, कुछ भी वर्ड हो सकता है, सब ट्रेडमार्क के अंदर आता है। प्लीज गो अहेड सर। कभी कभी कुछ स्पेसिफिक साउंड्स भी होते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर जब वो चलता रहता है तो आप देखेंगे जब स्टार्ट करते हैं एक साउंड बजती है। आईपीएल मैच आप देखते हैं वहां पे एक साउंड बजती है। तो कभी कभी क्या देखेंगे कि साउंड्स जो है वो भी एक ट्रेडमार्क है, जिससे उसकी स्पेशलिटी होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी पहचान होती है। और उससे जो है आप वो ट्रेडमार्क, इस तरह का कोई जो वर्ड है या आपका साउंड है, कुछ भी इस तरह का कोई काम है तो आप ट्रेडमार्क राइट के अंदर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। इस स्लाइड के ऊपर भी मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे आप देखिए जितने भी एडिडास का क्या लोगो है आप देख सकते हैं, गूगल वर्ड लिखा हुआ है, ये गूगल इटसेल्फ एक ट्रेडमार्क है। नौकरी.com आप देखिए ये भी एक ट्रेडमार्क है। तो इस तरीके से ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट हम लोग कर सकते हैं इन शक्ल में। अगर हमारे पास कुछ आइडिया है, कोई आइडिया सिर्फ नहीं होना चाहिए, आइडिया का एक्सप्रेशन होना चाहिए। सिर्फ कोई किसी को ख्वाब में आया कि हमने ये बना लिया है, हमने ये मॉलिक्यूल डिजाइन कर लिया, या हमने ये मशीन बना लिया है, हमको पेटेंट दे दीजिए, या हमने ये लोगो तैयार कर लिया है, कोई उसका शेप साइज नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, तो सॉरी उसके लिए आईपीआर प्रोटेक्शन राइट के अंदर में वो नहीं आता। तो एक्सप्रेशन करना जरूरी है। फंक्शन हमने बताया, जितने भी आईपीआर हैं उनका फंक्शन क्या होता है। आईपीआर का फंक्शन ये है और इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपका आईपीआर प्रोटेक्टेड है तो आपको मोनोपोली राइट मिलेगी, उसका आप ब्रांड वैल्यू होता है, रिपुटेशन होता है। किसी भी आईपीआर में ये सारी बातें कॉमन है और उसको आप अच्छे से बेच सकते हैं, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। प्लीज गो अहेड सर। अब यहाँ पे एक बात बतानी है आपको कि किसी भी प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो उस पर टीएम लिखा होता है। टीएम का मतलब ये नहीं होता है, इससे ये जाहिर नहीं होती कि आपको वो ट्रेडमार्क के अंदर है, ट्रेडमार्क मिला है कि नहीं मिला है। टीएम एक वाइड वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रेडमार्क, बट इट मे बी रजिस्टर्स अनरजिस्टर्स एप्लीकेशन पेंडिंग। एप्लीकेशन अगर पेंडिंग भी है फिर भी लोग टीएम लिख देता है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आर लिख करके सर्कल लगा है इसका मतलब कि ये इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है और उस चीज को कॉपी करने से बचना चाहिए। बिकॉज अगर किसी का आईपी आप चुराते हैं या पकड़े जाते हैं तो यू विल हैव टू फेस द सम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो देयरफॉर ऐसा काम ना करें। अगर कोई किसी की आईपी है, अपने आईपी का भी रेस्पेक्ट करें, दूसरे की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रेस्पेक्ट करें। ये कोई किसी को पसंद नहीं है कि हमारे घर में कोई दाखिल हो जाए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करें कि अपने प्रॉपर्टी का, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी रेस्पेक्ट करें, दूसरे का भी रेस्पेक्ट करें। इस स्लाइड के अंदर अगर आपके पास आईपी है, ट्रेडमार्क अगर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ऊपर, उसमें कुछ इस तरह का आपके पास कुछ है तो उसको आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आना पड़ेगा। डिफरेंट लोकेशंस पे ऑफिसेस है, आगे वाले स्लाइड में मैं बता दूंगा। यहाँ पे ट्रेडमार्क का जो लाइफ टाइम है वो 10 ईयर्स तक का होता है। अगर आप चाहें तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रेडमार्क। और मोर इन्फॉर्मेशन अगर ट्रेडमार्क के बारे में कुछ भी चाहिए तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ प्लीज मूव। नाउ व्हाट इज कॉपीराइट। ये जो कॉपीराइट होता है ये एक्सक्लूसिव राइट होता है।
ये एक्सक्लूसिव राइट कहने का मतलब ये हुआ सर कि ये किसी खास चीज के लिए आपको राइट प्रोवाइड की जाती है। किस चीज के लिए प्रोवाइड की जाती है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस चीजों के लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। अदर आईपी राइट के तहत कॉपीराइट भी आता है, इस ये भी मोनोपोली राइट है जो रियल क्रिएटर जो इसके जनक है उनको दिया जाता है। प्लीज गो एट सर, मूव नेक्स्ट। इन वर्क्स में अंदर कोई आप किताब लिखते हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं, कोई बुक्स आप लिखते हैं, कोई पोम लिखते हैं, ये अगर उसमें ओरिजिनलिटी है तो उसको आप कॉपीराइट के अंदर ला सकते हैं। आर्टिस्टिक वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में सिनेमाटोग्राफी है, साउंड रिकॉर्डिंग है, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। आप एज ए स्टूडेंट्स अगर आप हैं म्यूजिक में भी लिरिक्स वगैरह बनाने में, आप अगर कोई नया लिरिक्स बनाते हैं या म्यूजिक डिजाइन करते हैं तो उसको भी कॉपीराइट करा सकते हैं। आप एज ए स्टूडेंट ज्यादातर लिटरेरी वर्क में यानी बुक लिखने के लिए, पोम लिखने के लिए, इन सब चीजों के लिए कॉपीराइट करा सकते हैं। प्लीज गो एट सर। नाउ अगर आप कोई भी चीज करते हैं तो देखिए आइडियाज तो कहीं आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वहीं से आपको आती है। जैसे आपको कोई किताब लिखनी है, आप किताब पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग की कोई किताब है और किताब पढ़ने पे आपको लगता है कि अरे इस किताब में जो बातें लिखी गई है वो फॉरेन अथर्स है, ये हमारे कश्मीर की जुबान में लोग इसको बच्चे नहीं समझेंगे, तो उन चीजों को आप अपनी जुबान में उसकी कॉपी नहीं करनी, उसके वर्ड को नहीं लिखना, आपको लाइन बाय लाइन नहीं कॉपी करनी, आप उनको पढ़िए, समझिए और उसको अपना एक स्पीच दीजिए, अपनी एक थॉट दीजिए, अपनी एक आइडिया दीजिए और आसान भाषा में उसको अगर आप लिखते हैं, अब आसान लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसफर करते हैं और उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं। चूंकि आइडिया तो आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहां से आती है, लेकिन उनको पढ़ने के बाद अगर अपनी जुबान में कुछ लिखते हैं तो वो आपका आईपी होगा और वो उसका आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करा सकते हैं। कोई भी चीज करते हैं उसमें ओरिजिनिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ नया होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए और तब जाकर के वो आपका आईपीआर कराने के लायक है और आईपीआर उसमें करा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। इस स्लाइड के अंदर टर्म बताया गया, जैसे आप कोई बुक लिखते हैं, जैसे आप बुक लिखते हैं तो उसका क्या लाइफ टाइम होता है। जैसे पेटेंट का मैंने बताया 20 ईयर्स, ट्रेडमार्क का मैंने बताया 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स के बाद एक्सटेंशन चाहे तो हो सकता है। कॉपीराइट अगर है किसी का, जैसे आप कोई किताब लिखते हैं तो पूरी जिंदगी, ऑथर्स की पूरी जिंदगी तक उसका राइट होता है और इवन मरने के आफ्टर द डेथ 60 ईयर्स ऑल्सो, डेथ के 60 ईयर्स तक जो है ना उसकी राइट होती है, उसका आपको रॉयल्टी मिल सकता है। प्लीज गो एट सर। नाउ कॉपीराइट जब मिलती है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। कॉपीराइट मिलने से आप जो है इकोनॉमिक राइट होता है। इकोनॉमिक राइट जो भी राइट्स हैं आईपीआर के अंदर, इकोनॉमिक राइट का मतलब ये होता है कि आप उसको इकोनॉमिक्स मतलब पैसा अर्न कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं, लाइसेंस कर सकते हैं, अपनी कॉपी को आप उसको पब्लिश करा सकते हैं, डिफरेंट कॉपीज बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब इकोनॉमिक्स राइट के अंदर आता है। मोरल राइट के अंदर ये आता है कि उसके मालिकाना हक चूंकि आपको है तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं उसमें डाल सकता जिसकी वजह से आपके मोरलिटी को या आपके रिपुटेशन को उसमें डैमेज हो। तो इसीलिए मोरलिटी राइट में ये सब चीजें आती है और इकोनॉमिक्स राइट में जो चीजें उससे आप अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सारी के सारी इकोनॉमिक्स राइट के अंदर आती है। प्लीज गो एड सर। अगर आपके पास इस तरह का कोई आर्टिस्टिक वर्क है या कॉपीराइट है तो आप पेटेंट ऑफिस के अंदर, दिल्ली पेटेंट ऑफिस के अंदर कॉपीराइट ऑफिस है, पूरी इंडिया में एक ही जगह कॉपीराइट ऑफिस है और वो दिल्ली पेटेंट ऑफिस के अंदर है, द्वारका सेक्टर 14 के अंदर ये ऑफिस है। आप वहां पे आकर के आप अपना दाखिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर कॉपीराइट। प्लीज गो अहेड सर। नाउ ये नॉमिनल फीस है, अगर आपको कोई लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिशियन वर्क से रिलेटेड कोई आईपीआर आपको कराना है उसके लिए 500 फीस है। तो प्लीज गो अहेड सर। नाउ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट यू हैव टू नो। जैसे हमने अभी बताया पेटेंट तो किसी खास इंसान का इन्वेंशन है, हमने बताया ट्रेडमार्क किसी खास इंसान के दिमाग की उपज है, कोई लोगो स्लोगन, हमने आपको बताया कॉपीराइट कोई खास इंसान किताब लिखता है। लेकिन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ऐसी चीज नहीं होती। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है पूरे इलाका के लिए होता है। जैसे कश्मीर का सेफ्रॉन मैं बता रहा हूँ बहुत फेमस है, कश्मीर का सेफ्रॉन आप देखिए बहुत फेमस है। तो ये कश्मीर के किसी एक जगह का नहीं है, ये पूरे कश्मीर के लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आपके कश्मीर के अंदर, आप ये पूरी कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप कश्मीर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपके खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है, या आप वहां पे हो सकता है कि ऐसी चीज बनाते हैं जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, ये जो ओरिजिनिटी है यही मिलेगी। तो इसलिए आप इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग करा सकते हैं। ये किसी खास इंसान का नहीं होता, किसी इलाका वाइज का होता है, किसी खास लोकेलिटी का होता है, किसी खास पर्सन का नहीं होता। तो इस तरह से आप घर पे जाके सोचिएगा, आप जिस
एरिया से बिलोंग करते हैं, क्या वहां ऐसी चीज है जो बहुत ही अच्छी हो सकती है और उसमें यूनिकनेस हो, और ऐसी चीज ऐसी क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती हो, तो आप उसके लिए जीआई के लिए आप जा सकते हैं। किसी खास इंसान का नहीं होता। जैसे मुझे पता है कश्मीर में जो सैफरॉन है इसका जो है जीआई टैग है। प्लीज गो अहेड सर। नाउ जैसे इस स्लाइड के ऊपर मैं और चीजें आपसे बात करना चाहता हूं। एक इंडिया में एक स्टेट है बिहार, बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, वहां की शाही लीची बहुत फेमस है। तो शाही लीची हुआ, उड़ीसा रसगुल्ला, रसगुल्ले के लिए जाना जाता है। अक्सर ये लोग सुनते हैं कि बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, बट रिसेंटली बड़ी लिटिगेशन हुई टू स्टेट्स के बीच में, और अल्टीमेटली उड़ीसा ने यह साबित कर दिया कि रसगुल्ला जो है हमारे यहाँ पहले से मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के अंदर उड़ीसा को रसगुल्ला का जीआई टैग दिया है। कोल्हापुर का चप्पल, नागपुर जैसे सिटी है वहां ऑरेंज के लिए फेमस है, कांचीपुरम की साड़ी और दार्जिलिंग का टी। ये सब क्या होता है, जब भी ये सब चीजें आप बोलते हैं आपके माइंड में वो जगह, वो एरिया, वो खास जगह आपको माइंड में घुसता है। तो जब कभी भी इस तरह की चीज होती है तो आपके इलाका का भी नाम रोशन होता है, और आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड में, नॉट ओनली आपका इलाका, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस होता है। तो इसीलिए अगर इस तरह का कोई चीजें हैं तो आप जीआई टैग ले सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं व्हाई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज इंपॉर्टेंट, जीआई टैग लेना क्यों जरूरी है। सभी आईपी में जो बात है वो इसमें भी बात है कि अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट का होगा, उसकी ब्रांडिंग होगी, उसका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगा, और उसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं, उसको आप बेच सकते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। आपके इलाके का नाम रोशन तो होगा ही, साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट्स, पूरे पूरे इंडिया का नाम रोशन होगा वर्ल्ड के अंदर में। तो दीज आर द सम स्लाइड्स जहां पे जैसे आपको जो ताजमहल के अंदर मार्बल है वो, उसमें जो मार्बल लगा है वो जीआई है उसका, और इस तरह से दार्जिलिंग का टी है। ये कमिंग स्लाइड्स के ऊपर आप कुछ प्रोडक्ट देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। जो जो चीजें इस पे लिखी गई है वह किसी न किसी स्टेट का, किसी न किसी लोकेलिटी का जीआई टैग है। प्लीज गो अहेड सर। जैसे बासमती राइस है आपके कश्मीर के इलाके का, और इवन पंजाब, हरियाणा, बासमती राइस जीआई टैग है। ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है बासमती राइस। ये सारी चीजें जीआई टैग है जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आईपीआर इन इंडस्ट्रियल डिजाइन। डिजाइन एक ऐसा चीज है जो सब लोग समझता है, बट ये नहीं समझता कि ये भी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। क्यों? क्योंकि आप जो भी चीज खरीदते हैं डिजाइन से क्या आपको समझ में आता है, जो कोई भी चीज जाए और पहली नजर में आपको पसंद आ जाए वही डिजाइन है। मतलब जितना अच्छा डिजाइन होगा, जितना अच्छा अपीयरेंस होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ही आप उसको खरीदने के लिए जल्दी से आप एग्री हो जाएंगे। और लोग कभी कभी इतने फैन हो जाते हैं कि दुकान, जैसे आपको उस कल गए, ये डिजाइन पसंद आ गया, और अनफॉर्चुनेटली वो कल आपके पास पैसा नहीं था, खरीद नहीं पाए, तो अगले दिन उस दुकान में जाते हैं, मुझे तो वही चाहिए जो कल देखा था, और दुकानदार कहता है कि हम तो बिक गया वो। तो वो कहता है कि कब मंगाओगे, एक हफ्ते के बाद, तो एक हफ्ते तक वेट कर लेते हैं। तो डिजाइन ये चीज है कि डिजाइन कोई पर्टिकुलर शेप हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई गुड्स का हो सकता है। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो आप उसको डिजाइन के अंदर डिजाइन करा सकते हैं, और डिजाइन अगर अच्छा होगा तो लाइक अदर आईपीस इससे भी आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। इससे आप जानते हैं आजकल मार्केट में डिजाइन ही चल रहा है सब कुछ। जितना अच्छा डिजाइन होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट सेल होगा, उतनी अच्छी आपको इनकम होगी, उतना अच्छा आपका आईपी स्ट्रांग होगा, और उससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपका भी भला होगा, कंट्री का भी भला होगा, सबका भला होगा। सो इस सभी के अंदर जो स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स दिखाए गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के अंदर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिजाइन्स है वो डिफरेंट अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव है तो उसकी ब्रांडिंग ज्यादा हो सकती है। प्लीज गो अहेड सर। ये सब डिजाइन के बारे में देखिए, यहाँ पे ये बोतल वगैरह क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि बेटर डिजाइन है। तो अगर इस तरह का कुछ आप भी सोच रहे हैं, कुछ घर में कर रहे हैं, कुछ बैठे बैठे दिमाग लगाइए कुछ कर सकते हैं, तो वो भी आईपीए के अंदर आ सकता है। These all are the design articles. Please go ahead sir. ये सब आर्टिकल्स दिखाने के लिए है कि इसमें आप देखिए डिफरेंट आर्टिकल्स है, अच्छी डिजाइन में है, इसे लोगों को अट्रैक्ट करता है। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड सर। सब डिजाइन से। सो अगेन आई वांट टू टेल यू कि व्हाई द इंडस्ट्रियल डिजाइन इज इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में पहले ही बता दिया कि अगर अच्छा डिजाइन होगा तो उसकी ब्रांडिंग ज्यादा होगी, उसका आईपीआर स्ट्रांग होगा, तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। सभी आईपीआर में ये बात कॉमन है कि अगर आप दूसरे को कॉपी करने से रोक सकते हैं, अपना अपने पर्टिकुलर शेप में आपकी चर्चा होगी आपके प्रोडक्ट की, और आपका प्रोडक्ट ही सेल आउट होगा। तो डिजाइन करना जरूरी है। डिजाइन अगर आपके पास है तो ये भी एक आईपीआर है। प्लीज गो अहेड सर। अगर आपके पास डिजाइन है तो आप क्या करें, आपके पास इस तरह कोई आइडिया है जो आप डिजाइन में कन्वर्ट किए हैं तो उसको क्या करें। अगेन आई विल एडवाइस यू, प्लीज कम टू आवर ऑफिस।
हमारी ऑफिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4 पोजीशन पे है, कहीं भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपका जुडिक्शन, हर ऑफिस स्टेट वाइज जुडिक्शन में बांटा गया है, तो आप कश्मीर के हैं तो आपका जुडिक्शन दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर आप डिजाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। लेकिन डिजाइन को डील करने के लिए एक ऑफिस, डेडिकेटेड ऑफिस है, एंड दैट इज कॉल्ड कोलकाता पेटेंट ऑफिस। तो कहीं भी अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो ऑटोमेटिकली कोलकाता के अंदर चली जाएगी और वहां से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। प्लीज गो अहेड सर। इसमें कुछ फॉर्म्स है, फीस है। अगर आपके पास डिजाइन है तो आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है। 1000 रुपीज अगर इंडिविजुअल है तो, और किसी कंपनी से आते हैं तो 4000 के आसपास रुपीज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है फॉर प्रोसेस द डिजाइन। प्लीज गो अहेड सर। नाउ जितनी भी आईपी मैंने आपको बतलाई, ऑल आईपी इन वन स्लाइड्स आपको दिखाया गया है कि पेटेंट क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। प्लीज कीप इन द माइंड, पेटेंट इज गिवन फॉर द इन्वेंशन, डिजाइन इज गिवन फॉर द डिजाइन्स स्पेसिफिक अपीयरेंस, एंड ट्रेडमार्क मे बी इन वर्ड, लोगो लाइक दैट, एंड कॉपीराइट फॉर आर्टिस्टिक वर्क्स, एंड जीआई फॉर ए स्पेसिफिक स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ एरिया। किसी खास जगह के लिए खास चीज फेमस है उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। दिस ऑल आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो आपको इन फॉर्म में कुछ भी आपके पास है तो आप में प्रोटेक्ट योर राइट। प्लीज गो अहेड सर। नाउ व्हाट इज पॉइंट टू बी रिमेंबर, जैसे मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई आईपी है तो उसको पब्लिश ना करें, उसको लोगों को बताएं नहीं जब तक कि उसका प्रोटेक्शन के लिए आपने अप्लाई दाखिल नहीं कर दिया, रजिस्ट्रेशन दाखिल नहीं कर दिया। जिस दिन रजिस्ट्रेशन दाखिल करते हैं, मिले ना मिले, पेटेंट मिले ना मिले, लेकिन अगर आपने इन्वेंशन है आपका तो फाइल कर दीजिए। उसके बाद किसी को भी बताइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू प्रूफ कि लुक दिस पर्सन हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन दैट इज सो एंड सो। सो पहले इन्होंने डिस्क्लोज किया तो इनका राइट बनता है। उसके बाद मैंने बताया सेकंड पॉइंट है टेरिटोरियल राइट है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। अलग अलग कंट्री में अगर पेटेंट लेना है, आईपीआर प्रोटेक्शन करना है तो आपको अलग अलग कंट्री जाना पड़ेगा। जो भी सॉवरेनिटी कंट्री है उसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको ये सब आपको ये आईपीआर राइट देती है। राइट लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, इंतहास ये राइट नहीं होता मोनोपोली राइट। पेटेंट के लिए 20 इयर्स, ट्रेडमार्क के लिए 10 इयर्स। ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ऑटोमेटिक रिलीफ, कल को कोई आदमी, आपका कोई इन्वेंशन है कोई और आपका पेटेंटेड प्रोडक्ट है, कोई दूसरा आदमी इसको यूज कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट सू मोटो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी कि ये मेरा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, बट समबडी इज एब्यूजिंग माय राइट, सो देयरफॉर प्लीज डू नीडफुल इन दिस केस। तो फिर गवर्नमेंट सू मोटो नहीं, आप अगर बताएंगे तो गवर्नमेंट एक्शन में आएगी और फिर आपके राइट को जो है उसको प्रोटेक्ट कराएगी। मेंटेन करने के लिए रिन्यूअल फी देना पड़ता है। उसके बाद ये है कि अगर इनमें से कोई आपके पास आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो किसी एजेंट को, किसी अटॉर्नी को हायर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेंशन है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको और फीस कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, आप खुद आइए, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कीजिए। आप खुद से फाइल कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, आप आगे कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। प्लीज गो अहेड सर। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट इज द कैरियर अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो हम लोग अक्सर कैरियर से वरीड होते हैं। तो आप इस आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ध्यान सुनिएगा, यहाँ से बहुत आपके लिए काम की बात मैं बोल रहा हूँ, सभी आपके काम की बातें हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा, चूंकि सब लोग सोचते हैं कि व्हाट इज आवर फ्यूचर, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी आदमी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, राइट के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या अपॉर्चुनिटी है, हमारी ऑफिस जो पेटेंट ऑफिस है उसके अंदर एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन का पोस्ट होता है। ये ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट होता है। इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड, इफ यू हैव अ साइंस बैकग्राउंड देन एमएससी इन साइंस होना चाहिए, चाहे वो आप फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, इनमें अगर है तो आप जो है ना, और भी लाइफ साइंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी में 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप अगर इंजीनियर्स है, बीटेक्स आपके पास है या बी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो भी आप, हमारे यहाँ लगभग जितनी भी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग के होती हैं वो सारी डिसिप्लिन हमारे यहाँ है। मेजर डिसिप्लिन जो भी है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, ये सारे पोस्ट हमारे यहाँ होते हैं। तो जब कभी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है तो आपका 55% सुपर मार्क्स है तो ये कर सकते हैं। मैं बता दूं सिलेबस इसका जो होता है वो बिल्कुल जैसे गेट वाले के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो गेट का सिलेबस होता है वही सिलेबस होता है। और मास्टर वाले के लिए बता रहा हूँ, जो CSIR एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो उसका जो सिलेबस होता है सेम सिलेबस है, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बिल्कुल सेम सिलेबस है उसका।
उसके बाद एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क एंड जीआई बन सकते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि ग्रेजुएशन के साथ अगर लॉ की डिग्री इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास लॉ है तो आप तभी आप ट्रेडमार्क एग्जामिनर बन सकते हैं, कॉपीराइट के एग्जामिनर भी बन सकते हैं। दिस ऑल पोस्ट आर ग्रुप ए गस्टेड पोस्ट और हैंडसम पोस्ट है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स अपॉर्चुनिटी क्या है आउटसाइड द पेटेंट ऑफिस आईपीआर में अगर फील्ड बनाना चाहे तो पेटेंट अटॉर्नी होता है। जैसा मैं आपको बताऊं कि जनरली जो है आप अगर आप वकील करेंगे कोर्ट के लिए, कोर्ट केसेस में, तो वहां कोई भी वकील मिलेगा, लेकिन पेटेंट अटॉर्नी जो होता है कोई वकील नहीं होता, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड, और सिर्फ इसमें लिमिटेशन ये है कि जो पेटेंट अटॉर्नी होंगे उनका साइंस बैकग्राउंड होगा, यानी वो ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए। वही आदमी जो पेटेंट अटॉर्नी बन सकता है जिसका साइंस के अंदर ग्रेजुएट हो, और वह एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। अभी इसका पोस्ट निकला हुआ है पेटेंट अटॉर्नी के लिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के फॉर्म निकले हुए हैं, आप चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, अगर आप उस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको नोटिफाई रजिस्टर्ड पेटेंट अटॉर्नी घोषित कर देगी। उसके बाद कहीं भी जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे पेटेंट के रिलेटेड आप साइन कर सकते हैं, आपको राइट है। नाउ उसके बाद क्या होता है कि आजकल आईपीआर सेल आपकी भी कॉलेज में हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर हो सकता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आईपीआर सेल होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सेल बनाए जाते हैं, वहां पे आप जॉब तलाश कर सकते हैं। उस सेल के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपी जो ओवर वर्क करने के लिए नहीं होता, जो ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका है, अगर आप वहां पे इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपको इंसेंटिव नहीं है, नोवेल वर्क होना चाहिए। तो मान लीजिए ये आईपीआर जो एनालिस्ट होता है उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है साइंटिस्टों को बताना कि लुक यहाँ तक काम हो चुका है, आप रिसर्च इधर करें इधर मत करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्क हो चुका है, आपको नया काम, नया क्षेत्र, नया ओरिजिन ये आप यहाँ काम करें। तो ये आईपीआर एनालिस्ट का ये काम होता है। दूसरा काम ये भी होता है कि जब कभी कोई कंपनी बिकती है तो उसमें जो ये भी क्या है, आईपीआर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर जो वैल्यूएशन है, इवेल्युएट करता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की कितने बिकेगा, तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जब कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो उसमें आईपीआर एनालिस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। ये सब जो अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इस स्लाइड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे 4 ऑफिसेस हैं, उसमें पहला से मैं बताऊंगा राजीव गांधी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट RGNIPM नागपुर में है, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आईपीआर के बारे में कोई भी आपको कोर्सेस करने हैं तो आप इस इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। आप जिस तरह का आप पेटेंट पे, डिजाइन पे, ट्रेडमार्क पे कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। नाउ दिस इज द आईपी बिल्डिंग, आईपी ऑफिसेस हमारा 4 लोकेशन के ऊपर है, ऐसे दिखता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आप देख सकते हैं। दिस इज आईपी ऑफिसेस। प्लीज गो अहेड सर। नाउ अब यहां से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर दी है, 10 मिनट अभी भी मेरे पास टाइम है। इन 10 मिनट्स के अंदर में मैं आपसे जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उस पर कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप उसको कोशिश कीजिए, एक क्विज है जिसमें आप उसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्लीज इस स्लाइड के ऊपर में हमने आपको पहले इस क्वेश्चन को पूछने से पहले मैं आपसे 5 बातें कह देता हूं जो मैंने आपको बतलाई, पेटेंट के बारे में बतलाई, पेटेंट इन्वेंशन के लिए मिलता है। उसके बाद मैं ट्रेडमार्क के बारे में बताई, कोई नाम है, कोई ब्रांड है, कोई लोगो है, उसके लिए ट्रेडमार्क मिलता है। हमने डिजाइन के लिए, अपीयरेंस के लिए मैंने बताया डिजाइन मिलता है। उसके बाद मैंने आपसे बताई कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी खास एरिया की कोई खास चीज फेमस हो उसके लिए मिलता है, जीआई। तो इनको माइंड में रखते हुए आप इस स्लाइड के अंदर जो पजल है उसको देखिए, अगर आप कर पाते हैं तो मुझे बताइए इसमें कौन कौन सा आपको आईपी दिखता है। इस पजल के अंदर में कोई 1-2 नाम बता सकते तो बताइए जो आईपी आपको दिखता है। सर एक तो पेप्सी दिखता है सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। अमूल दिखता है सर। हॉर्लिक्स। सर ताहिर सर, समीर, अमीन सर का नाम नोट कर लीजिएगा इनको। आई हैव टू गिव द सर्टिफिकेशंस। समीर, अमीन सर सबसे पहले बताएं, इनको सर्टिफिकेट हम इशू करेंगे इन काम के लिए। प्लीज स्लाइड्स डाउन सर। ओके सर। अमूल सर। ओके, अमूल। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड्स। अमूल है सर, AMUL। अमूल है, ऑफ कोर्स अमूल भी है। हॉर्लिक्स। ये इनके आंसर्स है, ये इनके आंसर्स है, आप देख सकते हैं, ये इनके आंसर्स है, आप इनको देख सकते हैं। प्लीज गो अहेड सर। वाटर। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड, नेक्स्ट। वाटर। आप मैसेज करके बता दें, आप अपने आप को म्यूट ही रखें, इको वहां से ज्यादा हो रही है तो हम मैसेज में देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन दिखाइए सर, विच टाइप ऑफ आईपी प्रोटेक्ट द पेंटिंग पेंटेड बाय आर्टिस्ट। अगर कोई आर्टिस्ट है और उसने कोई पेंटिंग की है तो किस तरह के आईपी में आएगा। प्लीज
Please give me the answer. Which type Designs. of IP protects? Which type of IP protect the painting painted by artist? डिजाइन सर आर्टिस्टिक वर्क है, अभी मैंने आपको बताया आर्टिस्टिक वर्क के लिए डिजाइन नहीं होता। आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, आप बुक लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये कॉपीराइट के अंदर आता है। म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, जो स्लाइड थी उसको ध्यान से देखिए, उसके अंदर ये सब चीजें लिखी गई है और सारी चीजें कॉपीराइट के अंदर आती है। तो आर्टिस्टिक वर्क जो भी है उनके लिए कॉपीराइट के अंदर आएगा। प्लीज गो एट सर, प्लीज गो एट सर। नाउ व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द फैशन डिजाइनर? अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना तो आपको नाम ही में ही इसका आंसर छुपा है। तो फैशन डिजाइनर कोई है तो वो किस चीज के आईपी में आएगा? डिजाइन वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर ऑल द पार्टिसिपेंट, डिजाइन के अंदर आएगा। प्लीज गो एट सर, प्लीज गो एट सर। नाउ व्हाट प्रोटेक्ट द एडवांस डिस्क ब्रेक बाय डेवलप बाय इन्वेंटर? नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर कोई, चूंकि टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन है, तो इन्वेंशन के लिए हमेशा क्या मिलता है? डिजाइन नहीं, डिजाइन इज रॉन्ग आंसर। जब भी इन्वेंशन हो कोई, तो इन्वेंशन के लिए जो है पेटेंट मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका पेटेंट है। प्लीज गो अहेड ताहिर सर। नाउ विच ऑफ दिस इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन? इनमें से कौन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी खास एरिया की कोई चीज फेमस हो तो नागपुर ऑरेंजेस आर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। प्लीज गो अहेड सर। What does a trademark protect? Please give me the answer. What does the trademark protect? Logos, names, and brands. Very good, excellent answers. Logos, names, and brands. Logos, name, and brands are the trademark. ये trademark के अंदर आता है। Very good. You people are very intellectuals also and intelligent also, because आप सबका आंसर बिल्कुल सही बता रहे हैं। Please go ahead, sir. How long can a patent last? 20 years 20 years Yes, sir. 20 years. पेटेंट Yes. 20 years तक। कॉपीराइट बताइए तो बाबू कितने ईयर तक मिलता है कॉपीराइट? 10 years. 10 years and can be extended up to more time. हाँ, कॉपीराइट ऑथर्स की होल लाइफ प्लस 60 इयर्स उनकी डेथ के बाद भी कॉपीराइट मिलता है। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड ताहिर सर। नाउ इफ यू राइट एन ओरिजिनल स्टोरी, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव the right to decide who can make and sell the copy of the work? Copyright. Copyright. क्योंकि कॉपीराइट अगर आपका है तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को लाइसेंस कर सकते हैं, किसी को आप खुद नहीं आप पब्लिश करें तो किसी को पब्लिशर को दे सकते हैं, आप वो उसको इस्तेमाल करके आपको उससे अर्न कर सकते हैं। तो कॉपीराइट इज द वेरी राइट आंसर्स। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल बिकॉज सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नाउ इफ यू राइट, सॉरी, इमेजिन ए क्रिकेटर सेटअप हिज ओन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान सुनिएगा। Imagine a cricketer sets up his own company to sell his own range of clothes. Trademark. What intellectual property can use to show Trademark. that clothes? Very good, excellent answer. Trademark. Why? Because वो क्रिकेटर है या कोई फैशन डिजाइनर है, सॉरी क्रिकेटर है, या जैसे आप सलमान खान का बीइंग ह्यूमन आप देखते हैं कि वो मिलती है, तो ये इतना फेमस है और खुद ही क्रिकेटर हो चाहे वो कोई एक्टर हो, इतना फेमस है कि अगर कोई कंपनी बनाए से कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो अपने ट्रेडमार्क पे, अपनी नेम के ऊपर वो उस सामान को बेचेगा, तो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। प्लीज गो अहेड सर। इफ ए कंपनी, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चन बस। इफ ए कंपनी डेवलप ए न्यू टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव इट्स मेन प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन दे यूज टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम द कॉपिंग देयर इन्वेंशंस? प्लीज गिव द आंसर। इफ ए कंपनी डेवलप ए न्यू टेक्नोलॉजी, अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लिए क्या मिलता है? वी हैव ए टेक्नोलॉजी। गलत आंसर मेरा साहब, कॉपीराइट सर। कॉपीराइट। क्यों? टेक्नोलॉजी है ना। देखिए, इफ ए कंपनी डेवलप ए न्यू टेक्नोलॉजी दैट इंप्रूव इट्स मेन प्रोडक्ट, मैंने आपको कहा था कि कोई भी इन्वेंशंस अगर है ऑलरेडी और उसमें अगर कोई इंप्रूवमेंट भी करते हैं तो इन्वेंशन के अंदर आती है। कोई भी टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, टेक्नोलॉजी को हम इंप्रूव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब भी आएगी वो इन्वेंशन होता है, तो इन्वेंशन के लिए जो है पेटेंट मिलता है। तो द करेक्ट आंसर इज पेटेंट हियर। प्लीज गो अहेड सर। सो दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशंस। मैं आई होप कि थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस को छोड़ दिया जाए तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चूंकि थैंक यू ताहिर सर, आपने हमारा काम किया, आपने स्लाइड को कंट्रोल रखा, तो मुझे ये लगता है कि आप समझे होंगे। थोड़ा सा भी आईपीआर के बारे में अगर आपको नॉलेज है, अगर इंक्रीज कर गया होगा
अगर आप पहले से के कंपेरिजन में थोड़ा कुछ जान गए होंगे आईपीआर क्या होता है, क्यों प्रोटेक्शन जरूरी है, और हम आप सबको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप बहुत मेहनती हैं, आप काम करते हैं, बट अपनी आईपी को पहचानें। जिस तरीके से आपने कश्मीर के बाग को, अपने खेतों को, अपने सेब को आप पहचानते हैं, ये हमारा है, हमारा बाग है, हमारा जगह है, तो उसी तरीके से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी पहचानिए, आप अपनी प्रॉपर्टी को पहचानिए। जब आप अपनी प्रॉपर्टी पहचानेंगे तो ये आपको मालूम चलेगा ये हमारी चीज है और ये दूसरा कोई कॉपी कर रहा है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को ही नहीं पहचानेंगे तो फिर दूसरा आदमी कैसे रिलीफ आपको दिला सकता है। तो सबसे पहली बात, आप अपनी राइट को पहचानिए, और ये 5 आईपीआर है जो खास आपके लिए ही है, इंटेलेक्चुअल्स की ही राइट है, नाम ही है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो इंसान की तस्वुर और दिमाग से ऊपर से पैदा होती है। सो दैट्स ऑल। इसके बाद मैं ताहिर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, अगर आगे की कोई फॉर्मेलिटीज है तो आप कर सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. It was really an interesting as well as the interactive session. थैंक यू सर वेरी मच। Okay, sir. Sir, we are really lucky to have you today with us. Thank you, It sir. was really a fruitful session, especially for these students. I mean to say engineering students. Huh? Yes sir। Now we are in a position to understand what the property of ideas is all about. Sir, we are really looking forward to invite you physically here in our campus in Kashmir, so that Thank you, sir. So you nice can of you, sir. have So nice. one-to-one interaction with our students as well as the faculty members. Thank you, We sir. once again, sir, thank you for the precious time and the information you shared with us. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you sir, thank you very much, thank you very And much। thank you for all the participants to join this program. Thank you sir, thank you। Thank you, sir.